Yes, students, which topic we have covered in the last lecture? Which topic we have covered? Hmm? Which topic we have covered in the last lecture? Hmm? चलो बताओ. Fast, fast. Which topic we have covered in the last lecture? Yes. life cycle of Hmm. ASP.NET. Yes. Life cycle of ASP.NET application and life cycle of ASP.NET page. Okay, ASP.NET page and ASP.NET life cycle. That two life cycle we have covered in the last lecture. Okay, yes. Now, which are the steps for ASP.NET application life cycle? Which steps will be carried? Hmm? Yes, students, chalo. Which are the steps are followed during the application life cycle? Hmm? Yes, fast. May I audible or no? Screen is visible to everyone. Screen is visible. Yes, ma'am. हाँ, तो बताओ कौन से स्टेप्स है. फर्स्ट क्या होगा व्हेन वी रन द मैम एप्लीकेशन? किसके लिए? मैम किसके लिए बोला मैम? ASP.NET एप्लीकेशन लाइफ साइकिल एप्लीकेशन मैम लाइफ साइकिल. मैम पहला एप्लीकेशन स्टार्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएशन, उसके बाद एप्लीकेशन क्रिएशन, HTTP एप्लीकेशन क्रिएशन, उसके बाद डिस्पोज, उसके बाद एप्लीकेशन एंड आएगा मैम. Yes. Okay. First step is application start. Okay. When the request is made by the user. Okay. When the request is made by the user at that and the request goes to the server and server returns the response. मतलब a user will redirect to the home page. At that time the application will start. After that object created. Okay. There are three objects created. The first is HTTP context, HTTP request and HTTP response. Okay, what is HTTP context? HTTP context जो है that carries the HTTP request and HTTP response object. Okay, the next is HTTP application creation. If there are simultaneously two or more applications are open, so every application there are different objects, application objects will be created. Okay, the next is dispose. Okay, next is dispose. When we close the application but the application is still in the memory में है but उसको हम लोग destroy close कर रहे हैं. Okay, when we are closing the application but still the application is in the memory में भी है, उसको memory में से unload नहीं हुआ. At that time the dispose stage हम लोग बोल सकते हैं कि application is in dispose stage. Then last is application. When the application unloaded from the memory में से वो unload हो जाएगा, then application will be ended. ASP.NET page lifecycle. Okay, which are the stages of ASP.NET page web page lifecycle? Fast. Screen is sharing with you. Okay, आप उसको देख के you can give the answer. चलो बताओ. मैम बिना देखे भी बोल सकते हैं मैम. बिना देखे बोलो तो it's very good. Okay, yes, बताओ चलो. Yes, which are the page ASP.NET web page lifecycle stages? मैम पहला पेज रिक्वेस्ट, उसके बाद पेज स्टार्ट, उसके बाद पेज इंस्टॉलेशन, उसके बाद पोस्ट बैक इवेंट हैंडलिंग, उसके बाद वैलिडेशन और पेज लोडिंग. नो 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 मैम सारा उल्टा बोल दिया. आफ्टर द पेज पहला इनिशियलाइजेशन. पहला पेज लोडिंग आएगा, उसके बाद वैलिडेशन, उसके बाद पोस्ट बैक इवेंट हैंडलिंग, उसके बाद
page rendering rendering and unload. unload. Yes. Okay. Yes. Now पेज रिक्वेस्ट. व्हाट इज अ पेज रिक्वेस्ट? क्या होगा? कब पेज रिक्वेस्ट इवेंट कब अकर होगा? Page request, when the page is requested. Okay, this is when the page is first requested from the server. Okay, what is web page? In the website or in the web application there may be different pages. Okay, अलग अलग pages हो सकता है. If user request for the particular pages the first time, then page request will be generated. Okay, if the page request is first time if the page requested is for the first time, then the server will compile that page and send the response. If already the request is made previous, so what the server will do, वो क्या करेगा? The catch में से return करेगा response to the user को. Then next is page start. Okay, page start मतलब two objects are created, request object and response object. Okay, request object and response object. Request मतलब क्या? The user send the request. Okay, user request send करेगा and according to that request server will send the output. Page initialization. Okay, when the page initialize होता है. Okay, in this event all the controls, जो भी controls है web page पे, all controls is initialized. Okay, for example label, text box, button, all are the controls. If we have assigned some values, okay, और उसको हमने कुछ starting values दिया है, okay, that starting value will be initialized हो जाएगा. If we have assigned any values, ठीक है, उसको हमने कुछ values दिया है तो वो initialize हो जाएगा. Then page load. Okay, text box या तो कोई भी वेरिएबल्स या तो जो भी डिफॉल्ट वैल्यूज दिया है, डिफॉल्ट वैल्यूज विल बी लोडेड इन द पेज लोड. आफ्टर दैट वैलिडेशन, इफ वी हैव असाइनिंग एनी वैलिडेशंस. ओके, वैलिडेशन अगर हम लोग सेट कर रहे हैं, वैलिडेशन भी क्या हो जाएगा? रेडी हो जाएगा, सेट हो जाएगा. देन पोस्ट बैक इवेंट हैंडलिंग. इफ वी आर असाइनिंग व्हाट इज वैलिडेशन, व्हाट इज पोस्ट बैक इवेंट हैंडलिंग, वी विल लर्न ऑल दिस टॉपिक्स. ओके, यही यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे. अभी एक वैलिडेशन एक होल चैप्टर है. ओके, वैलिडेशन के लिए पूरा चैप्टर दिया हुआ है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलिडेशन है. क्लाइंट साइड वैलिडेशन, सर्वर साइड वैलिडेशन, बहुत सारा उसमें है. एक पूरा चैप्टर ये वैलिडेशन के लिए, तो अभी मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती. वी विल लर्न इन डिटेल. ओके, देन पोस्ट बैक इवेंट वी विल डू विद द एग्जांपल. ये इवेंट क्या है? ठीक है, जब यूजर एक बार बटन पे क्लिक करता है, ठीक है, अगेन वो क्लिक करता है, तो एट दैट टाइम जो हमने क्लिक किया ना बटन पे, एट दैट टाइम क्या होता है? पेज में जो कोडिंग है, द कोड इज सेंड टू द सर्वर फॉर चेकिंग के लिए कि यस ये जो करेक्ट है कि नहीं. उसको बोलते हैं पोस्ट बैक. द इवेंट इज ट्रिगर्ड इफ द सेम पेज इज बीइंग लोडेड अगेन. ओके, दिस हैपन इन रिस्पॉन्स टू अर्लियर इवेंट. अभी ऐसे नहीं समझ में आएगा, जब मैं आपको एग्जांपल करके दिखाऊंगी, प्रैक्टिकल रन करके दिखाऊंगी, तब आपको समझ में आएगा. पेज रेंडरिंग. ओके, पेज रेंडरिंग जब व्हेन दी सर्वर फाइनली जो रिस्पॉन्स यूजर को सेंड करता है, तो सर्वर क्या करता है? रिमूव कर देता है फ्रॉम उसका सर्वर साइड से, एंड रिस्पॉन्स किसको देता है? क्लाइंट को. तो वो हो गया पेज रेंडरिंग एंड अनलोड. ओके, जब वो मेमोरी में से जब रिमूव होता है तो पेज वो अनलोड. ओके, तो दिस आर द इवेंट्स, सॉरी दिस आर द स्टेप्स फॉर द पेज लाइफ साइकिल, ASP.NET वेब पेज लाइफ साइकिल, एंड दिस आर द स्टेप्स फॉर एप्लीकेशन लाइफ साइकिल. तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है. यस, द नेक्स्ट टॉपिक इज वेब कॉन्फ़िगरेशन फाइल. ओके, व्हाट इज वेब कॉन्फ़िग फाइल? वेब कॉन्फ़िग, CONFIG, कॉन्फ़िग मतलब कॉन्फ़िगरेशन. ओके, वेब कॉन्फ़िगरेशन फाइल. हैव यू सीन दिस फाइल इन माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो स्टूडेंट्स? हैव यू सीन दिस फाइल? आपने ये फाइल देखा है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो में? मैंने आपको दिखाया था क्या? ये सो नो, किसको याद है? वेयर दिस फाइल इज स्टोर्ड इन माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो? कहाँ पे स्टोर होता है ये फाइल? मैंने दिखाया था. we had already learned this file in types of ASP.NET files में हमने कवर किया ना. फाइल्स endwith.aspx फाइल, endwith.cs फाइल, web.config फाइल,
ठीक है, ये सारा हमने कवर किया टाइप्स ऑफ फाइल. टाइप्स ऑफ फाइल वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. आई ऑलरेडी शो यू इन दी लेक्चर में, मैं प्रैक्टिकल में आपको दिखाया भी था. यस, solution explorer, Nashra, very good. Okay, where this file store in the solution explorer, all the files, okay, all the ASP.NET files are stored in solution explorer. Okay, कहाँ पे store होगा? Solution explorer में store होता है. ठीक है. What is solution explorer? It is a window in Microsoft Visual Studio. Okay, the web.config file, configuration, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Configuration file. तो ये फाइल भी मैंने आपको दिखाया था हिंदी लेक्चर, किसी को याद है तो हमने दिखाया था. दिस इज XML फाइल. ये क्या है? XML फाइल है. ये ऑटोमेटिकली फाइल जनरेट होता है. बट क्या है? व्हाट विल बी स्टोर्ड इन दिस फाइल्स? ये फाइल में क्या स्टोर होगा? तो a configuration file is used to manage various settings that define the website. Okay, this file is generated automatically. हमको उसको जनरेट नहीं करना है. When you will create your application, तो this file will automatically generated. Okay, but क्या ये फाइल में? What is web.config file? क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि when you delete this ना, तो आपका एप्लीकेशन जो है वो रन नहीं होगा. तो आपको ये फाइल को डिलीट नहीं करना है. माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो में सॉल्यूशन एक्सप्लोर में ये फाइल वहाँ पे होगा, तो आपको उसको डिलीट नहीं करना है. इफ यू डिलीट दिस फाइल तो यू कैन नॉट रन योर एप्लीकेशन. ठीक है, आप एप्लीकेशन आपका रन नहीं कर पाओगे, तो उसको डिलीट नहीं करना है. कॉन्फ़िगरेशन फाइल, web.config फाइल is used to manage various settings that defines the website. Okay, configuration. What is the meaning of configuration? What is the meaning of configuration? मतलब क्या? What is the meaning of configuration, students? What is meaning of configuration, students? चलो बताओ, कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या? आप बोलते हो ना सिस्टम लेने जाते हो, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन है? मैं सिस्टम का क्या कॉन्फ़िगरेशन है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्फ़िगरेशन? यस स्टूडेंट, दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन. अगर आप बेसिक क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हो तो पता है किसी को व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन? हम लोग जनरली वी आर टॉकिंग ना कि क्या कर, कुछ न्यू लैपटॉप लेने जाते हैं या तो कुछ मोबाइल डिवाइसेस लेने जाते हैं, तो हम लोग क्या पूछते हैं? व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन? कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपके सिस्टम का? हम लोग पूछते हैं ना. मतलब कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या कि स्पेसिफिकेशन. हाँ, यस, वेरी गुड, स्पेसिफिकेशन. स्पेसिफिकेशन को आप क्या बोलते हो? कॉन्फ़िगरेशन. क्या आपका सिस्टम जो है उसका पूरा इंफॉर्मेशन. ओके, तो सेम वैसे ही .NET का जो पूरा इंफॉर्मेशन जो है रिगार्ड उसका जो भी स्पेसिफिकेशन जो है, ठीक है, दैट विल बी स्टोर्ड इन वेब कॉन्फ़िग फाइल. वेरियस सेटिंग्स जो रहता है डेटाबेस के लिए फॉर द सिक्योरिटी. ओके, जो भी कॉमन information जो है settings related, that will be stored in the web config file. The settings are stored in XML files that are separate from your application code. ठीक है, ये जो फाइल है वो कौन से फॉर्म में है? XML फॉर्म में, एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज. ओके, दैट इज अ HTML जैसा ही लैंग्वेज है बट एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज. ओके, मतलब इन दिस वी कैन क्रिएट आवर ओन टैग्स. हम लोग हमारे खुद के टैग्स वी कैन क्रिएट. ओके, यूजर डिफाइंड टैग्स आर देयर. तो XML फाइल में इंफॉर्मेशन स्टोर होता है. जनरली a website contains a single web.config file stored inside the application root directory. Okay, however, there can be many configuration files that manage settings at various level within the applications. Okay, but generally एक ही फाइल होता है. मैंने I have already shown you in the last lecture, last to last lecture जब प्रैक्टिकल किया था तो मैंने आपको दिखाया था टाइप्स ऑफ फाइल में वेब कॉन्फ़िग फाइल. The usage of configuration file. The ASP.NET configuration system is used to describe the properties and behavior of various aspects of ASP.NET applications. Okay, configuration files help you to manage the many settings related to your websites. Clear?
Each file is an XML file with the extension .config that contains a set of configuration elements. The configuration information is stored in XML based text file. Okay, tags में ही होगा, जैसे HTML में we are using this text, same इसमें जो information जो है वो text में form में store होगा. ठीक है, text form में store होगा. Okay, now next question is what the web config file contains. हमने तो बोला कि configuration settings information store होता है, but actually में मतलब क्या content उसमें store होता है. ठीक है, there are a number of important settings that can be stored in configuration file. Some of the most frequently used configuration stored conveniently inside the web config files are database connection related information, etching settings, session. Okay, what is session? हम लोग देखेंगे state management techniques से session, cookies, query string, all are the state management techniques. So session related information, error handling. Okay, error handling related जो information होगा that will be stored. Security of our website या तो application related जो security होगा वो security related information जो है उसका जो settings है that will be also stored in this file. Okay, many information are stored but these are the common इतना तो उसमें store होता ही है. Database, if you are using database in your system तो डेटाबेस का वर्जन क्या है, ओके, कौन सा सपोर्ट कर रहा है डेटाबेस, उसमें क्या सिक्योरिटी है, एरर हैंडलिंग यूज करे हो तो व्हाट आर टेक्निक्स एरर हैंडलिंग का यू आर यूजिंग. तो ऑल दिस सेटिंग्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन विल बी स्टोर्ड इन web.config फाइल. ओके, web.config फाइल में स्टोर होगा. द एक्सटेंशन क्या है, web.config फाइल. आई विल आस्क इन द एमसीक्यू क्वेश्चन ओके व्हाट इज web.config फाइल, या तो व्हाट इज अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ऑप्शन दिया होगा व्हाट इज configuration file from the below answers में से, then या तो उसमें क्या स्टोर होता है. तो any type of question I can ask. okay, ऐसा दिखता है. configuration file look like this is a tags, ये tags है. okay, but XML tags है. XML tags मतलब क्या, we can create our own tags, हम लोग हमारे tags create कर सकते हैं. configuration suppose for example database related information store करें तो ये तो टैग होगा ही. configuration close tags will be there because वो configuration file है. connection strings उसका name, connection string उसका जो पूरा path है that will be stored like this. okay, for example if you are using the error handling का आप कुछ यूज करो तो उसका related information यहाँ पे store होगा but tag format में store होगा. okay, tags format में store होगा. तो आपका जो फाइल है that looks like this. okay, so this is a configuration file. actually आज ये लैपटॉप है, मेरे लैपटॉप में अवेलेबल नहीं है मेरा .NET, नहीं तो आपको दिखाती. ओके, तो दिस इज अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल. अगेन मैं आपको जब हम लोग डेस्कटॉप से लेक्चर करेंगे तब मैं आपको दिखाती हूँ उसमें. इज नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन फाइल, machine.configuration file and web.config file. okay, there are two types of configuration file. एक तो machine.config file and second is web.config file. yes, आपको याद रखना है for the MCQ के लिए types of configuration file. machine.config मतलब क्या, सर्वर और मशीन वाइड कॉन्फ़िगरेशन फाइल. आपका जो मशीन जो है, ठीक है, पूरा इंस्टॉलेशन जो सेटअप जो है आपका, ठीक है, उसके रिलेटेड पूरा इंफॉर्मेशन होगा machine.config में. एंड web.configuration मतलब आपका जो पर्टिकुलर .NET में माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो में एप्लीकेशन जो क्रिएट करे हो, ठीक है, तो एप्लीकेशन रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन जो होगा, एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन का जो सेटिंग्स होगा वो किस में होगा, web.config फाइल में. डिफरेंस क्या है समझ में आ रहा है? आपका जो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो .NET जो है, ठीक है, .NET का जो पूरा कॉन्फ़िगरेशन जो है उसका जो सेटिंग्स का इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पे स्टोर होगा, machine.config फाइल में. एंड ये web.config फाइल में व्हाट विल बी दिस सेटिंग स्टोर, कि आपका एप्लीकेशन जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन यू आर सिलेक्टिंग, फाइल में जाके न्यू में जाके ऐड में जाके एप्लीकेशन चूज करते हो, ठीक है, तो हर एक एप्लीकेशन को क्या होता है, web.config फाइल होता है. एवरी एप्लीकेशन हैज डिफरेंट web.config फाइल, बट मशीन कॉन्फ़िग फाइल क्या है, एक ही होगा आपके सेटअप के लिए, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो के सेटअप के लिए. वो आपको कहाँ पे मिलेगा, इन दिस फोल्डर में. machine configuration files are applied to executing site based on hierarchy. This is a global configuration site file for all the sites in given machine. ठीक है, आप जो आपके सिस्टम में .NET इंस्टॉल करते हो ना, तो वो
.NET के लिए वो सिस्टम में machine.config फाइल विल बी जनरेटेड. ओके, वो कहाँ पे मिलेगा आपको? सी ड्राइव, विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट .NET फ्रेमवर्क, जहाँ पे आपने स्टोर किया होगा ना आपका विजुअल स्टूडियो माइक्रोसॉफ्ट, उसका फोल्डर में config डायरेक्टरी करके एक फोल्डर होगा, उसमें आपको machine.config फाइल मिलेगा. ओके, दिस फाइल कंटेन्स सेटिंग्स फॉर ऑल दी साइट्स रनिंग ऑन दी मशीन. आपके मशीन में जितने भी फाइल्स यू आर रनिंग ना, पूरा इंफॉर्मेशन स्टोर होगा ये फाइल में. ओके, क्लियर. एंड वेब एप्लीकेशन जो web.config फाइल है वो कहाँ पे मिलेगा आपको? पर्टिकुलर एप्लीकेशन में. कहाँ पे मिलेगा? पर्टिकुलर एप्लीकेशन में. तो ये जो machine.config फाइल जो एक ही होगा. ओके, इट विल बी ओनली वन machine.config फाइल, एक ही होगा आपके मशीन के लिए, जिसमें आप जितना भी आपका .NET में जितना भी आप रन कर रहे हो आप, ठीक है, फाइल्स वगैरह एप्लीकेशन, उसका इंफॉर्मेशन मतलब कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स उसमें स्टोर होगा इन machine.config फाइल में. एंड web.config फाइल है वो, तो हर एक एप्लीकेशन, ईच एंड एवरी .NET एप्लीकेशन हैज its own copy of configuration setting stored in a file called web.config. Clear? Difference clear? What is the web.config and what is machine.configuration? Yes or no? machine.config and web.config. कोई डिफरेंस, मतलब कोई डाउट है? समझ में आ रहा है? What is the difference? machine.configuration and web.configuration. तो I can ask the question like this के there are possibly है कि हर एक एप्लीकेशन को machine.config फाइल है, yes or no? तो आपको आंसर पता होना चाहिए. Every application has separate web.config file, yes or no? तो कोई भी in any way I can ask the question. Okay, .NET is a vast subject. मैंने आपको पहले ही बताया vast subject है, because this is a soft practical subject. Theory नहीं है, practical है. Okay, so I have so many choices. Okay, I can ask the questions in MCQ exam. So you have to prepare in every way. Clear, students? Clear? Yes or no? समझ में आ रहा है? Yes. हाँ, तो जब भी मैं आपको क्लास में बोलूँ कि ऐसा क्वेश्चन होगा तो प्लीज नोट डाउन करके रखो. ओके, नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आई विल नॉट गिव यू द इम्पोर्टेंस नहीं दूंगी मैं आपको, क्वेश्चन बैंक नहीं दूंगी. फिर रोज का रोज मैं आपको बोलूँ ये करना है वो करना है, ठीक है, तो नोट डाउन करते रहो. ठीक. Okay, now this is a configuration settings. Now next is ASP.NET Server controls. The next topic is ASP.NET Server control. After this topic, our practical will be started. Okay, what is a server controls? Okay, controls मैंने आपको दिखाया, yes or no? Controls मैंने आपको दिखाया. कंट्रोल्स हम लोगों ने यूज किया स्टूडेंट्स मंडे के लेक्चर्स में, प्रैक्टिकल्स में हमने कंट्रोल्स यूज किया, यस और नो? कंट्रोल्स यूज किया हम लोगों ने मंडे के लेक्चर में. विच कंट्रोल्स वी हैव यूज्ड? ओके, कंट्रोल क्या है पता है? यस और नो? यस और नो? कंट्रोल्स क्या है पता है? यस जेरोल्ड, कंट्रोल्स पता है? नो. ओके, ठीक है. ओके, चलो. कंट्रोल्स मतलब क्या? जो टूल बॉक्स में जो टूल्स अवेलेबल है, ओके, द टूल्स जो अवेलेबल है टूल बॉक्स में, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, ओके, बटन जो हम लोगों ने यूज किया द डिजाइनिंग में, ऑल आर दी कंट्रोल्स. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंट्रोल्स बोलते हैं. आई टोल्ड यू इन दी प्रैक्टिकल की जो कंट्रोल जो टूल बॉक्स में से हम लोग ले रहे, लेबल लिया हम लोगों ने, टेक्स्ट बॉक्स वी हैव टेकन, देन बटन वी हैव टेकन, ओके, वन फॉर्म वी हैव डिजाइन, एंटर द नंबर 1, एंटर द नंबर 2, वो हमने लेबल में लिखा. सामने हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया,
then we have taken button. Okay, so all are the controls. ये क्या है? Controls है. क्या है? Controls. Okay, or in the HTML में you are creating the control, a text box, then button, radio button, checklist, और क्या? Combo box. ठीक है, और क्या कंट्रोल्स क्रिएट किया हम लोगों ने HTML में? All are the controls. वो सब क्या है? Controls है. Controls are used to design the web page. Okay, in HTML we can create the controls using the text, but in ASP.NET we have the toolbox. We have the ready-made controls are there. ठीक है, ये सारे controls कहाँ पे मिलेगा हमको? toolbox में. Okay, मैंने आपको दिखाया था toolbox. ठीक है, तो ASP controls, ASP.NET server controls क्या मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, but what is controls? कंट्रोल्स मतलब क्या? टूल्स, टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, बटन, रेडियो बटन, कैलेंडर, वो भी हमने लिया था, मैंने आपको कैलेंडर भी लेके दिखाया था. तो ऑल आर दी कंट्रोल्स. द कंट्रोल्स आर यूज्ड टू डिजाइन दी वेब पेज. वेब पेज डिजाइन करने के लिए कंट्रोल्स यूज होते हैं. ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स अवेलेबल्स. ओके, बहुत सारे कंट्रोल्स अवेलेबल हैं इन टूल बॉक्स में. हम लोग पढ़ेंगे हर एक कंट्रोल, वी विल लर्न इन डिटेल विद द प्रैक्टिकल के साथ हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेन कंट्रोल्स है. ओके, द फर्स्ट इज सर्वर कंट्रोल्स, HTML सर्वर कंट्रोल्स, वेब सर्वर कंट्रोल्स एंड वैलिडेशन सर्वर कंट्रोल्स. उसको सर्वर कंट्रोल्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये जो हम डिजाइनिंग करें, ठीक है, डिजाइनिंग विल बी रन इन दी ब्राउजर. ओके, डिजाइनिंग विल बी रन इन दी ब्राउजर, मतलब सर्वर उसको एक्सेस करेगा. ओके, जो हमने डिजाइन किया, जो उसको कोडिंग किया है, तो उसको कंपाइल कौन करेगा? सर्वर. ओके, सो उसको हमने नाम दिया है सर्वर कंट्रोल्स. ओके, हम लोग देखो इन द सोर्स कोड में वी आर राइटिंग दी रन एट सर्वर. एवरी कंट्रोल क्रिएट करने के बाद हम लोग क्या लिखते थे? रन एट सर्वर, मतलब कंट्रोल्स कहाँ पे रन हो रहे हैं? सर्वर पे रन हो रहे हैं. सो उसको नेम दिया है सर्वर कंट्रोल्स. ओके, द सर्वर कंट्रोल्स आर द टेक्स्ट दैट आर अंडरस्टूड बाय द सर्वर. उसको कौन एग्जीक्यूट करेगा? सर्वर. सो उसको नेम दिया हुआ है सर्वर कंट्रोल्स. देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ सर्वर कंट्रोल्स. 3 टाइप्स के सर्वर कंट्रोल्स है. एक HTML सर्वर कंट्रोल्स, द सेकंड इज वेब सर्वर कंट्रोल्स एंड द थर्ड इज वैलिडेशन सर्वर कंट्रोल्स. जो टूल बॉक्स है ना, इन द टूल बॉक्स में ये सारे कंट्रोल्स अवेलेबल है. ठीक है, टूल बॉक्स में ये सारे कंट्रोल्स अवेलेबल है. 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स, HTML सर्वर कंट्रोल्स, वेब सर्वर कंट्रोल्स एंड वैलिडेशन सर्वर कंट्रोल्स. शॉर्ट में मैं आपको पहले एक्सप्लेन करती हूँ, देन हम लोग प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे. सर्वर HTML सर्वर कंट्रोल्स मतलब क्या? ट्रेडिशनल HTML टैग्स. ओके, जो HTML में जो टैग्स थे और टेक्स्ट बॉक्स के लिए, रेडियो बटन के लिए, बटन के लिए, सबमिट बटन, कैंसिल बटन, बटन्स के लिए, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, टेक्स्ट बॉक्स, बटन्स. ठीक है, ऑल आर दी कौन से टैग्स है? ये HTML टैग्स है. तो HTML के टैग्स, सेम टैग्स इसमें अवेलेबल है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? HTML सर्वर कंट्रोल्स. कौन सा? HTML सर्वर कंट्रोल्स. वेब सर्वर कंट्रोल्स मतलब क्या? HTML सर्वर कंट्रोल्स छोड़ के जो ASP.NEट, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो ने जो न्यू कंट्रोल्स हमको प्रोवाइड किया, दैट इज अ न्यू ASP.NEट टाइप्स. ओके, वेब सर्वर कंट्रोल जो ASP.NET ने न्यू हमको बना के दिया. नाउ कैलेंडर सर्वर कंट्रोल HTML में नहीं था. HTML में कैलेंडर कंट्रोल था नहीं, तो बट दिस न्यू कंट्रोल्स आर अवेलेबल इन .NET. वो .NET में अवेलेबल है. ओके, देन पैनल. ठीक है, पैनल करके भी एक कंट्रोल है. ठीक है, वो कंट्रोल HTML में अवेलेबल नहीं था, बट .NET ने वो प्रोवाइड किया है. ठीक है, लेबल इज ऑल्सो नॉट इन दी HTML में भी लेबल नहीं था, बट इन दी .NET में लेबल कंट्रोल इज देयर. तो कंट्रोल्स विच आर प्रोवाइडेड बाय दी ASP.NET, उसको क्या बोलते हैं? वेब सर्वर कंट्रोल्स. ओके, वेब सर्वर कंट्रोल्स. जो HTML के टैग्स जो है वो HTML सर्वर कंट्रोल्स हो गया. ठीक है, एंड वन मोर कंट्रोल्स आ जाए, दैट इज अ वैलिडेशन सर्वर कंट्रोल्स. कौन सा है? वैलिडेशन सर्वर कंट्रोल्स. ठीक है, तो जो वैलिडेशन के लिए कंट्रोल्स है कि दो टेक्स्ट बॉक्स जो यूजर नेम है, इट मस्ट बी फुलफिल, या तो उसको ब्लैंक नहीं छोड़ना है. प्लीज एंटर द वैलिड मोबाइल नंबर. तो वी विल यूज ऑल द वैलिडेशंस. वैलिडेशंस के लिए भी कंट्रोल्स अवेलेबल है. उसके लिए आपको कोडिंग करने की जरूरत नहीं. वी हैव द वैलिडेशन, रेडीमेड कंट्रोल्स है. टेक्स्ट
फोन नंबर है तो फोन नंबर के सामने वी विल टेक दी वैलिडेशन कंट्रोल लेंगे, उसमें सेट करेंगे 10 डिजिट होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली दैट टेक्स्ट बॉक्स विल कंटेन ओनली 10 डिजिट, नॉट मोर देन 10, नॉट लेस देन 10। ओके, तो वैलिडेशन सर्वर कंट्रोल्स भी अवेलेबल है पर इनपुट वैलिडेशन के लिए। तो मेनली जो टूल बॉक्स में जितने भी कंट्रोल्स है ना, वो कंट्रोल्स को डिवाइड किए हैं 3 पार्ट्स में। एक तो HTML सर्वर कंट्रोल्स, वेब सर्वर कंट्रोल्स एंड वैलिडेशन सर्वर कंट्रोल्स। तो वो जो टूल बॉक्स है उसमें मेंशन नहीं किया हुआ है कौन सा सर्वर है कौन सा वेब सर्वर है, बट उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो दैट वी विल लर्न इन द नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि ऐसे मैं आपको थियरी पढ़ाऊंगी तो यू विल नॉट गेट द आइडिया कि ये क्या है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली प्रैक्टिकल में करेंगे एवरी कंट्रोल्स, तो उस तब मैं आपको बताऊंगी कौन सा सर्वर कंट्रोल्स है, कौन सा HTML कंट्रोल्स है एंड विच आर द वैलिडेशन कंट्रोल्स। ठीक है, क्लियर? बट अभी के लिए याद रखो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सर्वर कंट्रोल्स, HTML सर्वर, वेब सर्वर एंड वैलिडेशन सर्वर। HTML के कंट्रोल्स को हम लोग HTML कंट्रोल्स सर्वर बोलेंगे, HTML सर्वर कंट्रोल्स वी विल टेल, जो ASP.NET ने प्रोवाइड किया उसको हम लोग वेब सर्वर कंट्रोल्स बोलेंगे, एंड जो वैलिडेशन के लिए जो कंट्रोल्स है उसको वी विल टेल द वैलिडेशन सर्वर कंट्रोल्स। ओके, सर्वर मतलब क्या कि जो कंट्रोल्स जो सारे हैं वो कंट्रोल्स कहाँ पे रन होगा, सर्वर पे रन होगा। कहाँ पे रन होगा, सर्वर, बिकॉज दिस इज अ वेब एप्लीकेशन, हम लोग वेब एप्लीकेशन वेबसाइट्स बना रहे हैं। ओके, तो ऑल कंट्रोल्स विल बी रन ऑन दिस सर्वर, इसके लिए उसको नेम दिया है सर्वर। क्लियर? यस और नो? क्लियर? Yes, ma'am. ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू विद द प्रैक्टिकल के साथ करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, एवरी कंट्रोल्स हम लोग प्रैक्टिकल के साथ करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। ओके।